Question number 5. Find out range of the given function. So fx is equal to 2x minus 3. Here they are given to you that x belongs to R and x greater than 0. So x greater than 0 is a domain of f. You have to take only positive value. So that is domain of f. So I am taking here x greater than 0. Up what I have done, multiply with minus 3. So what happens? Suppose x is equal to 6. x is equal to 6, it is greater than 0. So greater than 0 है. So suppose अब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ माइनस 3 के साथ. आई एम मल्टीप्लाइंग विथ माइनस 3. सो माइनस 3 इंटू 6 is equal to minus 18. 6 is greater than 0. After multiplying with minus 3, your answer will be negative. So whenever I am multiplying with negative values, your inequality will be changed. So x greater than 0 minus 3x is less than 0. Now just I am making a y. fx means कि y. So to make a y, मुझे क्या करना है? I have to just add 2 on both the sides. I am adding 2 on the both side. What happened? 2 minus 3x less than 2. So this is your fx. fx is less than 2. fx is less than 2 means if I am drawing it on a number line, it is not equal to, so value of fx is less than 2 minus infinity to 2. If I can draw a figure on a number line, so these values are your answers. Answer कहाँ पे possible है? All answer lie between minus infinity to 2. It is not equal to, so I cannot write close interval. So my answer is minus infinity to open interval minus infinity to 2. Okay, next question. fx is equal to x square plus 2. fx is equal to x squared plus 2. X belongs to R. Now we all know that for all x belongs to R, x square is always greater than or equal to 0. fx is always greater than or equal to 0. It means कि if I am adding 2 on both side, x square plus 2 is greater than or equal to 2. Again on a number line 2 to infinity. Your fx lies between 2 to infinity including 2. Including 2. So your answer is range of f is close interval 2 to open interval infinity. I have said so many times that infinity is not a fixed value, so you cannot put close interval here. Never, never. Okay. Number 3. fx equal to f. fx equal to x. So this is your identity function. This is your identity function. So range of f equal to r. If I am drawing a rough graph, then what is it? Rf equal to r. That's it. Okay, miscellaneous 2. Question number 1. fx is equal to x square between 0 to 3 and 3x between 3 to 10. Here the number 3 is repeated. Here it is also equal to. Here it is also equal to. Same way gx. What is change in gx? gx में change सिर्फ इतना है कि here there is both on both place there is 2. Here on both place there is here it is 3, here it is 2. You have to check that f and g are function or not. अब फंक्शन के लिए चेक क्या करना है कि x की वैल्यू के लिए मुझे आंसर 2 नहीं मिलने चाहिए. सो 0 to 3 में तो आंसर रिपीट होने नहीं वाला है क्योंकि 0 to 3 में तो फंक्शन एक्स स्क्वायर है. एक्स स्क्वायर मतलब कि वैल्यू कोई भी फंक्शन की वैल्यू ले लो, आंसर आपको एक ही मिलेगा. सिमिलरली 3 to 10 में भी क्या होगा? 3x. तो 3 to 10 में भी आंसर एक ही मिलेगा. x की वैल्यू 1 पुट करो, उसका मल्टीप्लाई बाय 3 सेम होगा. ओके, तो अब मुझे सिर्फ चेक करना है ऑन 3 कि 3 में एक्स स्क्वायर पुट करूँ कि 3x पुट करूँ. यहाँ पे आप इजीली चेक कर सकते हैं. पुटिंग x इक्वल टू 3 इट इज़ 9. यहाँ पे भी 9. सो योर फंक्शन f इज़ फंक्शन. g के लिए क्या हो रहा है? 2 पे चेक करो, एक्स स्क्वायर भी एंड 3x भी. ओके, सिमिलरली जैसे यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो वो वैल्यू रिपीट नहीं होंगी. यहाँ पे 3x है, वैसे 3 2 to 10 में भी आपका 3x है, तो वहाँ पे भी वैल्यूज़ रिपीट नहीं होंगी. सो मेन थिंग यू हैव टू चेक इज़ एट 2. ओके, सो हियर इट इज़ जस्ट अ लिटल बिट
explanation because they want a reason to. So for 0 to 3 fx contain unique value, for 3 to 10 fx contain unique value as taking 0 also and 10 also. अब चेक कहाँ कर रही हूँ? for 3 first I am putting x square, so 3 square that is 9, for 3 3x, दोनों फंक्शन में मैं बारी बारी चेक कर रही हूँ. इफ़ योर आंसर इज सेम देन f इज़ फंक्शन. सो therefore for all values of x आंसर इज़ यूनिक, सो f इज़ अ फंक्शन. अब gx में फंक्शन क्या हो रहा है? gx में इफ़ आई एम पुटिंग gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो दो वैल्यू है मेरे पास 2 के लिए, एक्स स्क्वायर भी है एंड 3x भी है. सो g ऑफ 2 स्क्वायर दैट इज़ 4 एंड gx इज इक्वल टू 3x, g ऑफ 2 दैट इज़ 6. सो 2 के लिए मुझे आंसर 4 भी मिल रहा है, 6 भी मिल रहा है. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो g इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ ओनली रिलेशन. ओके, g इज़ ओनली अ रिलेशन. नेक्स्ट, अब fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. वी हैव टू फाइंड जस्ट वैल्यू दिस वन, f1.1, f of 1 1.1 minus 1. So 1.1 square minus 1 square upon this is 0.1. अब यहाँ पे आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे मैंने वैल्यू पुट करी है. आई हैव पुटेड द वैल्यू ऑफ 1.1 मतलब 1.21, 1.1 स्क्वायर 1.21 माइनस 1 अपन 0.1, देन गिव इट सिंप्लीफिकेशन लाइक दिस. और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म है, सो यू कैन पुट ए माइनस बी, ए प्लस बी. दिस विल बी ऑलवेज द इजियर. देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से ही 1.1 माइनस 1 एंड 1.1 प्लस 1, दिस इज़ 0.1, ऊपर नीचे कट हो जाएगा एंड दिस इज़ 2.1, दिस इज़ योर आंसर. यहाँ पे आपको एलसीएम एंड वो सब करना पड़ेगा. हियर यू विल गेट डायरेक्टली एन आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव टू फाइंड डोमेन ऑफ अ फंक्शन. योर फंक्शन इज़ इन द फॉर्म ऑफ f/g. देखिए ऊपर रैशनल, ऊपर पोलिनोमियल फंक्शन, नीचे भी पोलिनोमियल फंक्शन. सो दिस इज़ योर रैशनल फंक्शन. अब एक चीज़ हमें पता है बिल्कुल, gx कांट बी ज़ीरो. जहाँ पे gx ज़ीरो है, वी हैव टू रिमूव दैट थिंग फ्रॉम द डोमेन ऑफ f/g. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग. सो आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग. पहले तो fx क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12. सो डिनोमिनेटर में जो है वो वैल्यू ज़ीरो कहाँ पे हो रही है? आई चेक, it is 0 at 6 and 2. Factors x minus 6, x minus 2, so x equal to 6 and x equal to 2. So I am removing that values from domain of f. So r minus 2, 6. Similarly, they have given us example. Again you have to find domain. तो क्या करना है, कहाँ पे डोमेन आपका डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है, x माइनस 4, x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर्स. So x equal to 4 and 1. So remove that. That's it. Okay. Question number 4. डोमेन फाइंड करना है, रेंज फाइंड करनी है. फंक्शन इज रूट x माइनस 1. सो पहले ही मैंने बोल दिया है कि रूट मीन्स ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़ पॉसिबल. मतलब ये जो है रूट में दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लूँगी एंड आई एम चेंजिंग द साइड ऑफ 1, तो क्या होगा, माइनस 1 से यहाँ पे हो जाएगा 1. सो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मतलब क्या, 1 टू इन्फिनिटी, दैट्स इट. अब जब बात करें रेंज की, तो अगेन आंसर इज़ पॉजिटिव स्क्वायर रूट. तो पॉजिटिव मतलब आपका 0 पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है और पॉजिटिव सारी वैल्यूज़ पॉसिबल है. सो योर रेंज इज़ 0 टू इन्फिनिटी including 0. so this is closed interval. Here including 1 minus 1 that is 0. देखिए आपको क्या दिमाग में रखना है कि आंसर अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए. if there is a negative value then it is not possible, that values of x not possible. Something like I am putting minus 1, so minus 1 minus 2, so that is not possible. if I am putting 0, so 0 is not possible. 0.5 is not possible. क्यों? क्योंकि 0.5 माइनस 1 दैट इज़ माइनस 0.5, वो वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है. ठीक है. सो कहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी, जहाँ पे आपका अंदर 0 वैल्यू बन रही है, वेर इट इज़ 0.
x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 0 होगा, सो आपकी स्टार्ट होगी रेंज, डोमेन कहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रॉम 1 एंड 0 आंसर में पॉसिबल है। 0 कहाँ पे, ये क्या कर रही हूँ मैं, आई एम फाइंडिंग आंसर हियर, सो आंसर में पॉसिबल है, सो नो प्रॉब्लम विद दैट। सो आंसर इज 0 टू इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, you have to find again domain. So domain and range, we clearly know that for modulus function all the values of r possible, so domain equal to r. And if I am talking about the graph, so here your graph is here, 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है दैट डजेंट मैटर। रेंज के लिए मुझे पता है योर ग्राफ इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, वाई की वैल्यूज सारी कौन सी आएंगी, पॉजिटिव, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो यू कैन राइट आर प्लस यूनियन 0 और 0 टू इन्फिनिटी, क्लोज ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, और यू कैन राइट आर में से सब्ट्रैक्ट कर दो नेगेटिव वैल्यूज़, चलेगा कोई भी। यहाँ पे सिर्फ आप नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ लिखो, आर माइनस नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ लिखो, चलेगा, ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट। क्वेश्चन नंबर 6, f इज इक्वल टू x कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपको पता है कि सपोज f ऑफ 1 1 लिखा है, तो मैं क्या करूँगी, दिस इज़ माई x एंड दिस इज़ माई y और f ऑफ x की वैल्यू मैं f में पुट कर रही हूँ, आंसर ये है, ओके। तो यहाँ पे भी सेम थिंग है, फंक्शन क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, दैट इज रैशनल फंक्शन। अब क्या करेंगे, देखिए जो न्यूमिनेटर है दैट इज एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, नॉट इनफैक्ट ग्रेटर देन 0, लेकिन अगर मैं 1 1 ऐड करूँ ऑन बोथ साइड तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब गाइज हो क्या रहा है, देखिए x की वैल्यू 1 पुट करिए, डिनोमिनेटर में 2 आएगा, f की वैल्यू 2, x इक्वल टू 2 लीजिए तो क्या आएगा 4, 2 स्क्वायर दैट इज़ 4, 4 प्लस 1 5, 3 स्क्वायर दैट इज़ 9, 9 प्लस 1 दैट इज़ 10। तो मतलब डिनोमिनेटर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1 बाई न्यूमिनेटर। तो अब ऐसे जो सिचुएशन है उसमें व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, आप कोई भी वैल्यू ले लो, योर आंसर विल बी इन पॉइंट, ठीक है, समथिंग इन पॉइंट, इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 1, इट कैन बी अप्रोक्सीमेटली 1 बट नेवर बी 1। 0 अगर पुट करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आंसर 0 बाई 1, सो 0 पॉसिबल है, लेकिन 1 कभी भी पॉसिबल नहीं है। सो आपको बेसिकली लिखना क्या है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये सारा आपका एक्सप्लेनेशन, वो बिल्कुल लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये अगर आप लिखना चाहो सो लिख सकते हो कि x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, सो दैट इज़ द वैल्यू। सो एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, देयरफॉर न्यूमरेटर इज़ लेस दैन डिनोमिनेटर बाय 1, सो रेंज ऑफ f इक्वल टू क्लोज ओपन इंटरवल 0 to 1, क्लोज ओपन इंटरवल 0 to 1। क्वेश्चन नंबर 10, a equal to 1 2 3 4, b equal to 1 5 9 11 15 16, that is given to you, f is something like 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11। आपको सोचना है कि f is a relation or not। so पहले तो रिलेशन का प्रूफ दे दे। रिलेशन मीन्स व्हाट, जो भी आपका फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज लाई फ्रॉम फर्स्ट सेट एंड सेकेंड एलिमेंट लाई फ्रॉम सेकेंड सेट। तो आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 ऑल लाइज फ्रॉम वन सेट and 5 9 1 5 11 all lies from second set। so आपका जो f है that is a subset of a cross b, a cross b जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको मिलेगा उसका सबसेट है, so that's why f is a relation। now checking about function, तो फंक्शन के लिए क्या हो रहा है, 2 के साथ आपका y 9 भी है एंड 11 भी है, सो मतलब 2 2 के साथ कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट विथ 9 एंड 11 बोथ, सो f इज नॉट अ फंक्शन, दैट्स इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, f इज अ सबसेट ऑफ z क्रॉस z। अब क्या गिवन है आपको, f इक्वल टू ए बी, दैट इज योर x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट a प्लस बी, तो ए बी बिलोंग्स टू z में लेना है एंड साथ में सोचना है कि इज इट फंक्शन और नॉट। देखिए तो मैं क्या कर रही हूँ,
a equal to 2 and b equal to 3. If I am putting a equal to 2 and b equal to 3, multiplication क्या होगा 6 and what is addition 2 plus 3 को y कोऑर्डिनेट क्या होगा 5. अब सिमिलरली 6 कहाँ पे और पॉसिबल है, सपोज मैं 6 इंटू 1 ले लूँ, -6 इंटू -1 ले लूँ, -2 इंटू -3 ले लूँ, ये चारों वैल्यूज़ लेने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू हैव ओनली वन एग्जाम्पल दैट इट इज़ नॉट ट्रू, दैट इज़ इनफ. सो आई एम पुटिंग a इक्वल टू 6 एंड b इक्वल टू 1. सो एडिशन क्या होगा 7. एक बार 5 आया, दूसरी बार 7 आया. सो for 6 you have two values 5 and 7, so f is not a function. Okay, question number 12. A equal to 9 10 11 12 13. f from a to n, range of m find करना है आपको. fn क्या आपको given है, what is a function, the highest prime number in a factor of n. मतलब मैक्सिमम प्राइम नंबर जो आपका होगा, फैक्टराइजेशन करेंगे, जो आपको नंबर गिवन है 9 10 11 12, उसका फैक्टराइजेशन करेंगे एंड विच वन इज़ योर हाईएस्ट नंबर, दैट इज़ योर आंसर. सो सपोज मैं 9 की बात करूँ, सो फैक्टराइजेशन क्या होगा 1 3 एंड 9, तो उसमें मैक्सिमम प्राइम नंबर कौन सा है, दैट इज़ 3. अगर 10 की बात करें तो 1 2 5 10 आर फैक्टर्स, मैक्सिमम प्राइम नंबर 5. 11 की बात करें सो ओनली फैक्टर इज़ 1 एंड 11, सो 11 इज़ अ प्राइम नंबर. 12 की बात करें सो 1 2 3 4 6 एंड 12 दे आर फैक्टर्स. सो मैक्सिमम फैक्टर क्या होगा आपका, मैक्सिमम प्राइम फैक्टर होगा 3. एंड जब बात करें 13 की, सो 13 इटसेल्फ प्राइम नंबर, सो 1 इंटू 13 13 इज़ योर आंसर. अब रेंज फाइंड करनी है, सो 3 5 11 3 अगेन नॉट गोइंग टू राइट बिकॉज रिपीटेशन नॉट अलाउड, and 13, that is your range. Okay guys, अभी जो remaining examples बाकी है 7 8 and 9 I am giving you in a short while. वंदे मातरम.